Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will see how the threats spread. The following are some common ways of spreading viruses, worms, and adware. In the last class, we have seen that what is a virus, what is a worm, and what is an adware. So, in today's lecture, we will see how these different types of viruses spread out. Uh, there are several ways, out of which some of are written here, like through infected flash drives or USBs, email attachments, surfing insecure websites, and installing pirated software. And what are these? We'll see in detail. The first one is the viruses spread themselves using infected flash drives or USBs. What we mean by infected flash drives means a flash drive having a malicious software or a virus in the shape of a file is called an infected USB. USB flash drives are widely used for storing and transmitting information. When a user inserts a USB disk that has malicious program in it, it can damage data stored on the computer and spread the virus to other drives or other computers on the network. Always scan fresh drive before using it into computer. So we have seen that a malicious software, a malicious program can infect the USB. So what you will do before using the USB is to scan it out. How we can scan it out? We can scan it out using an antivirus software. We will see what is an antivirus software in the latter topic. Always scan a flash drive before using it into the computer. Students, there is a suggestion that as we know that flash drives can be a source of spreading virus, and this is a very strong source. So, being a computer professional, I will recommend that you must not use flash drives for transmitting files. Instead, you transfer files using some standard uh, email servers like Google or Yahoo or etc. This is the best way of sending files. Send the files through some standard web source. This is the best practice. Otherwise, if you want to use USB because some huge files are there, like if you want to install Windows, you have to use the USB drives. Then you have to scan it out, and how we can scan it out, we will see in the later topic. So another source of spreading a virus is email attachments. An email attachment is a computer file sent along with an email message. So when an email comes from someone, it has a software, it has a virus inside that email. When you use during early times, the only way user could usually get a computer virus by inserting an infected floppy disk into the computer. What is a floppy disk? Uh, uh, I think most of you, the students, will know that what is a floppy disk is a kind of storage, a small storage space, a small storage device that was used to transfer data from one place to another. This is like a USB drive. The purpose of the floppy drive is like a USB drive. It was used to transmit the data from one place to another place. With the advent of the internet, now computer viruses have an easy way to get into millions of computers at once. Using those floppy drives, the spread of floppy drives was not that huge as we see in these days that the virus spread out very quickly from one computer to another computer because of the internet connections. And from internet, how can it be spread out? It is spread out using the uh, email contents. When an email comes from an unknown person, it has some malicious virus attached with that email. When we download the email or when we click the email, that software automatically installs in our computer, and this is how a virus can spread very quickly.
So one precaution is that we should not open the emails from an unknown source. Although Yahoo and Gmail and Hotmail have an antivirus inbuilt, but some of the times the advanced viruses have not been detected by these services, so it is spread out very quickly. Now computers viruses have an easy way to get into the millions of computers at once. One of the simplest way for a computer to get infected is via an email attachment. More than one file can be attached in an email. Some viruses usually come attached to the emails. तो होता ये है कि हम ईमेल्स एक दूसरे को भेजते हैं और सम टाइम कुछ अननोन ईमेल्स आ जाती हैं अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को, जिसमें लिखा हुआ होता है अर्न मनी और लाइक डिफरेंट टाइप के ऐसे मैसेजेस होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर यूजर्स इवन। और उनकी अट्रैक्शन को देखते हुए जब हम ईमेल्स को ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बेसिकली फेक ईमेल्स थी और उनके साथ एक वायरस अटैच था। और वायरस क्या कुछ कर सकता है वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। वो आपके डेटा को भी चोरी कर सकता है, वो आपके डेटा को इन्फेक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है आपका डेटा एटसेट्रा। वो उसके बहुत सारे कॉजेज हो जाते हैं आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के। तो इसका हल यही है कि हम एक तो अननोन ईमेल्स ओपन ना करें और ईमेल्स जो किसी वैलिड सोर्स से आई हैं उसी को ओपन किया जाए। और दिस इज हाउ वी कैन सेव अवर सेल्व्स। The third one is surfing insecure websites. The World Wide Web contains some insecure websites. हम सर्च आउट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स फॉर डिफरेंट कंटेंट्स और होता यह है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं जो जिसमें वो कंटेंट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं एट गूगल सर्च, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो बेसिकली इनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं और वहाँ पे वो वाइल वी आर सर्फिंग द वेबसाइट्स वो स्प्रेड आउट करते हैं वायरस और वो हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं और वो इन्फेक्ट करते हैं सिस्टम को। तो इसका भी तरीका ये है कि कोशिश करें कि जो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं जो आपको पता है, लाइक HBL की वेबसाइट जो होगी वो hbl.com के नाम से होगी। इसी तरीके से जो वैलिड सोर्सेज हैं, लाइक अपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स खोलिए तो वो पर्टिकुलर जो अथेंटिक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वही हमें खोलनी चाहिए। तो इनसिक्योर वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हालांकि वहाँ पे वो अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसे कंटेंट्स लगा देते हैं जिनकी अट्रैक्शन को देखते हुए हम उन वेबसाइट्स को सर्च आउट करते हैं। So this is also a source of spreading viruses. The World Wide Web contains some insecure websites. These websites offer downloading links or useful programs installations. When these programs are downloaded, they bring them viruses, worms and adwares. तो जब हम उन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, वो प्रॉम्प्ट आउट करते हैं जब, तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम्स में वायरसेस, वर्म्स और एडवेयर्स आ जाते हैं। ओपनिंग सच फाइल्स इन्फेक्टेड द कंप्यूटर सिस्टम्स। The computer viruses can not only cause serious damage to machine, they can also steal valuable personal information that could have long-term harmful effects on life and livelihood. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है हमारा डेटा डिस्टर्ब ना हो, हमें ना लग रहा हो कि हमारा डेटा वहाँ पे चोरी हो गया है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो डेटा हमारा चोरी हो रहा होगा। और जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट्स भी हैंडल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में मोबाइल के थ्रू, और बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि चोरी हो रही होती हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इनसिक्योर वेबसाइट्स के ऊपर उनको सर्फ ना करें और उनके सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें, अदरवाइज यू कैन फेस ए वेरी ह्यूज लॉस। Installing pirated software. Pirated software is an unauthorized copy of licensed software. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है फॉर फाइनेंशियल पर्पस, लेकिन हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। और अब वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर उस कंपनी ने तो सेल आउट नहीं किया, लेकिन वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि किसी और थर्ड पार्टी ने उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करके उसके अंदर वायरस अटैच किया है और उससे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो
ऑफिशियल कास्ट है वो है लाइक 20,000 पाकिस्तानी रुपीस। हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिला? कॉस्ट तो कंपनी ने उसकी रखी हुई है, हैकर्स उसको क्रैक करते हैं और उसके अंदर अपने वायरसेस अटैच कर लेते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा होता है, वो डेटा हमारा स्टील आउट कर लेते हैं। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें और अथोराइज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। And it is also a crime to make pirated software. In Pakistan, it is quite easy to install pirated software, but in foreign, it is a crime. When you install a pirated software, you will be punished. Such software can also affect the computer. They may contain viruses or worms in them. Sometimes the distributors of pirated software intentionally affect them with the viruses. अब इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल क्या है? इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? इट्स नॉट ए मेडिसन, इट इज़ आल्सो ए सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर मीन्स अ प्रोग्राम। तो अभी तक हमने देखा कि वायरस भी एक सॉफ्टवेयर था, यानी कि एक लाइन ऑफ कोड से उसमें जो कि कंप्यूटर को बताते थे कि क्या करना है। तो एंटीवायरस भी इज़ अ सॉफ्टवेयर, इज़ अ प्रोग्राम दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू इन सम सिचुएशंस। अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसको डिसइंफेक्ट कैसे करना चाहिए। उसकी लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि सपोज देयर इज अ वायरस हैविंग टू line of code. In line number 1 it is written that go to line number 2, and in line number 2 it is written that go to line number 1. तो ये एक वायरस है जिसमें से लाइन नंबर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, और वो उसी के दरमियान सर्कुलेट होता रहेगा, और सीपीयू का वैल्यूएबल टाइम जो है वो उसकी प्रोसेसिंग में ही लगा रहेगा और सिस्टम हमारा स्लो होगा। अब इस वायरस को हम कैसे रुका सकते हैं? हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसको हम नाम देंगे एंटीवायरस का, और हम उसको प्रोग्राम को ये बताएंगे कि अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस लूप आउट हो रही हैं कंसेक्यूटिव फॉर लेट से फॉर 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स सेम इंस्ट्रक्शंस आमतौर पे एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हमारे सिस्टम को पता चलेगा कि अगर ऐसा कोई काम हो रहा है सिस्टम में तो उस प्रोसेस को रुकाया जाए और उस प्रोसेस को किल किया जाए, जो हमारे सिस्टम्स को रिपीटेडली एक ही टास्क के ऊपर कंटिन्यूसली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन लगा के रखता है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आपको वो समझ में आए कि एंटीवायरस होता क्या। तो वो जो प्रोग्राम हमने लिखा उसके अगेंस्ट में जो उस प्रोसेस को रुकाएगा वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा, और वो हमारे वायरस को स्टॉप करेगा। So antivirus is software which is used to prevent, detect and remove viruses, threats like virus, worms, Trojan horses, spyware, adware, etc. Burn Fix developed the first antivirus software in 1987. Antivirus programs are developed to ensure a virus-free environment. They are designed to detect and remove viruses from the infected programs. Antivirus software typically uses two different techniques to accomplish this. One technique is examining files to look for known viruses, Examine files to look for known viruses by means of a virus database. And the second one is identifying suspicious behavior from any computer program which might indicate infection. अब ये दो अप्रोचेस क्या हैं? ये दो अप्रोचेस ये हैं कि जितने भी वायरसेस रिपोर्ट आउट होते हैं, एंटीवायरस ऑर्गेनाइजेशंस उन वायरसेस के एंटीवायरस बना लेती हैं और अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेती हैं। वो स्टेप्स जब भी उनको किसी सिस्टम में नज़र आते हैं वो डेटाबेस में से चेक करते हैं और उसके खिलाफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो नॉन वायरसेस का उनके पास एक डेटाबेस बनता चला जाता है और वो उसको नॉन तरीके से ही किल भी कर लेते हैं। सेकेंड वन है आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम विच माइट इंडिकेट इन्फेक्शंस। तो समटाइम जैसे मैंने बताया है कि कुछ प्रोग्राम्स में होता ही है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हैकर्स नए नए वायरसेस डेवलप करते हैं, तो वो जो नया वायरस है उसकी डेफिनेशन एंटीवायरस में मौजूद नहीं होती। अब वो एक नया वायरस बनाया है उन्होंने, उन तमाम वायरसेस से हट के जो पहले से मौजूद थे उनकी टेक्निक से हट के उन्होंने एक नई टेक्निक इजाद की और एक नया वायरस बनाया। तो उस वक्त तक एंटीवायरस को ये नहीं पता होता कि ये वाला वायरस कौन सा है, अनलेस के वो उसको चेकआउट करें और उसका हल कोई निकाल दें।
या उसका कोई तोड़ निकाल सकें। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो ये उनमें कैपेबिलिटी होती है एंटीवायरस में कि वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है, मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी ये है कि यूज़र ने माउस को क्लिक नहीं किया और माउस पॉइंट आउट कर रहा है या खुद ब खुद मूव हो रहा है, तो एक सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो वो उसको पॉइंट आउट करता है और कहता है कि ये एक इन्फेक्टेड सेक्शन है और ये इट्स ए काइंड ऑफ वायरस। सो इस तरीके से एंटीवायरसेस जो हैं वो काम करते हैं। अब वायरस डेफिनेशंस क्या होती हैं? A virus definition refers to the database of current virus description files used by particular antivirus software for virus detection. तो वायरस डेफिनेशन से मुराद है वायरस के अपडेट्स। वायरस का जैसे हमने अभी देखा कि एक डेटाबेस क्रिएट होता जाता है और उसमें तमाम नॉन वायरसेस की एक एंट्री होती जाती है और उनका एक तोड़ भी उसके साथ हम जनरेट करते जाते हैं, जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं। अब एक ऐसा वायरस आया जो कि पहले से डिफाइंड ही नहीं था, जो पहले से दुनिया में मौजूद ही नहीं था, और हैकर्स ने वो एक नया वायरस जनरेट किया। तो फिर वो एंटीवायरस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस वायरस की एक्टिविटीज़ को रीड आउट करती है और उसका फिर एंटीवायरस बनाती है। तो वो एंटीवायरस बना के वो एंटीवायरस की कैपेबिलिटी हमारे सिस्टम में तो नहीं है, अनलेस कि हम वो वायरस डेफिनेशन इंटरनेट से डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में, जब तक वो डेफिनेशन हमारे पास नहीं आएगी। तो वायरस डेफिनेशन refers to the database of all current virus description files used by a particular antivirus software. तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने वायरसेस को अपडेट रखा करें ताकि लेटेस्ट जो वायरस डेफिनेशंस हैं वो आपके सिस्टम में आ जाएं और वायरस आपके सिस्टम को अटैक ना कर सके। एंटीवायरस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स दीज डेफिनेशंस व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आमतौर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस डेफिनेशंस को बाय इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड अपने उसमें डाउनलोड करते रहते हैं ऑटोमेटिकली बिहाइंड द स्क्रीन, और हमें नहीं पता चलता लेकिन वो डेफिनेशंस आती रहती हैं। इफ़ दे डू नॉट नो द लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन देन दे कैन नॉट डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। अगर उनके अंदर वो डेफिनेशन नहीं होगी तो वो उसको वायरस एंटीवायरस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा लेकिन हम उस वायरस को पकड़ नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर उसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरस थ्रेट्स रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड कीपिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अप टू डेट। जैसे मैं आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एंटीवायरस को भी हमें अपडेट रखना पड़ता है कंटिन्यूसली। Browsing the internet, downloading email attachments, and instant messaging are common ways of infecting a computer with an unwanted virus spyware. A virus may be hiding in computer if it begins acting strangely or constantly rebooting. So the next topic is how are virus definitions used. During a virus scan, antivirus software compares the content on a computer, including the hard disk, boot sectors, RAM, and removable drives, against its virus definition database to recognize the symptoms or pattern of a modified code by the likely virus. This enables antivirus software to effectively detect viruses upon the discovery of any of the code included in the virus definition database. तो उनके जो डिफाइंड पैटर्न्स हैं उनसे वो मैच करता है हमारे सिस्टम को। अगर ऐसा कोई पैटर्न है जो उस से मैच नहीं हो रहा तो उसको पता चल जाता है कि ये एक इसमें वायरस डेफिनेशन नहीं है और उसकी वायरस डेफिनेशंस को चाहिए होगी। हाउ द वायरस डेफिनेशंस आर यूज्ड, तो वो तमाम पैटर्न्स, अगर कोई एक नया वायरस आया और उसकी नई एक वायरस डेफिनेशंस आ गई हैं सिस्टम में, तो वो उसके अंदर डेटाबेस में इंस्टॉल कर लेता है और फिर उसको सिस्टम के अंदर कंपेयर करके उस वायरस सीक्वेंस को वो ब्रेक आउट करता है। सो दिस इज़ हाउ वायरस डेफिनेशंस आर यूज्ड। वाई इज वायरस डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट? मैंने आपको बताया कि वायरस डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए नए वायरस जनरेट होते हैं और उन नए वायरसेस के लिए नई डेफिनेशंस जनरेट होती हैं और वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उनको डाउनलोड करें ताकि वो नए वायरसेस के ख़िलाफ़ भी मौसर तरीके से उसको स्टॉप कर सकें। For antivirus software to provide effective protection, to enjoy effective protection by an antivirus software, it is essential that the virus definition database used
incomprehensive, if frequently updated. Virus authors are constantly creating new variants and new viruses in attempt to exploit vulnerabilities in the user system. So इस पर्पस के लिए हम लोग हमें चाहिए कि हम वायरस डेफिनेशंस को कॉन्स्टेंटली जो है वो अपडेटेड वायरस डेफिनेशंस अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया करें. दिस इज ऑल फॉर टुडे. In the next chapter, we will study commonly used antivirus software.